Hello, I'm Roshni. So, have you read this? Can you switch on your camera, Roshni? Okay. Hello. Yes, ma'am. Hmm. Can you Yeah, I asked you to switch on your camera, please. Okay. So, so you live in Abu Dhabi, right? Yes, ma'am. Okay. So, can you understand both of the languages, Hindi and English? Are you comfortable with both of those? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I lived in India for 7 years, so it's okay. Oh, for 7 years. Yes. Okay. Yes, ma'am. I mean, basically, you're from India, Yes, ma'am. I'm from Tamil Nadu, but then we shifted to Abu Dhabi. So. Tamil Nadu. Okay, fine. Good. So, you have read the starting of this chapter? Yes, ma'am. Ma'am, we have finished this chapter in school, so. You have finished this chapter. Yes, ma'am. If I ask you question, what is Ohm's law? You must be knowing what is Ohm's law, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I think I remember. Okay. I remember. Because we finished this in first term, and after that, I don't So it think I was in remember first. it like that much. Okay. Which board is there? Oh, yes, ma'am. Boards is there. Like pre boards is there in January. Okay. Okay. So we will be studying today. Wait. I will start today the important terms related to resistance and the factors on which the resistance for conductor depends. So you must be knowing that because we have read this chapter. So Ohm's law, V is directly proportional to what? To current. Current. Please explain. Current. V is directly proportional to current, right? Okay. And in then we have to replace this proportionality sign with some constant, with Constant. the equality sign followed by some constant, right? Constant. Mhm. So that constant is what? R resistance. R. Okay. R means here from this equation we can see that I is inversely proportional. If the resistance will increase, then current in the circuit will decrease. Yes, ma'am. Right? Even today Rudra hasn't joined to start. Okay. So you are knowing all these things. Okay. Then we'll go for some important terms related to resistance. Okay. Some important terms related to resistance. It gets freezed, gets frozen. Is it visible? Yes, ma'am. It's visible. The terms are the Yes, ma'am. terms Yes, ma'am. visible to you? No. Okay. The first one is you can do this question now. Example 5 asks you to do the Yes, question. ma'am. I think It's I can. very easy. I think Yes. right? You can do it. Okay. So first is resistor. Resistor is what? Resistor is I'm not sure. a part of an electric circuit which offers resistance to the flow of electron, right? Which offers resistance to the flow of electron. Resistor is like this. The shape of a resistor is something like this. Something like this. Okay. So it's colored. It's blue and green and somewhat orange type of thing, means it's colored. Let me show you resistor. Or have you ever seen your school lab register? Ma'am, yes, ma'am. We have seen a resistor and a rheostat. Both we have seen. You have seen Yes, ma'am. something like this. Something like this. There is a color coding in the resistor. When you'll go to the lab and in 11th or 12th class, then you got to know that what is the value of these resistors. Means it will be dependent on the colors of the resistor. Okay. Okay. Yes, ma'am. So there are many types of resistors which will be having different values. Okay. Hello, Sophia. Hello, Sophia. You there? Good evening. Good evening. Okay. So I've started it's now the topic, the next topic, some important terms related to resistance. Okay, first one is resistor. Resistor is something like it's a small device, very small device in an electric circuit which we connected to the electric circuit, which helps to control the Flow of flow electric of current. electrons. Okay, and hence the current will get controlled, right? It depends on the flow of electron. Electrons. In this direction, if electrons is traveling, then the flow of current will be in this direction. Flow of current will be this direction. This is the conventional direction. Okay, ये ले लिया गया है. Like means it's not very like it's not practically proven, right? ये बस एक कन्वेंशन ले लिया गया है कि इस साइड इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस साइड
करंट जाएगी। ओके, ये कन्वेंशन ले लिया गया कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन। ओके, so it is a component in an electric circuit which offers resistance to the flow of electron constituting electric current is known as a resistor. Okay, fine. Resistor looks like this. Safia, resistor something looks like this. Okay, it has some type of colors and color coding is there, and it depends on the color coding that what will be the value of that resistance, what will be the value of resistance of that resistor. Okay, okay, these are used to make those electrical devices where high resistance is required. जहां पर ज्यादा resistance required होता है, तो वहां पर just like कि घर पे है, अब घर पे कितने वोल्ट की कितना वोल्ट आता है सबके घर पे, कितना वोल्ट आता है, हाउ मच वोल्ट मीन्स मेन सर्किट से कितना वोल्ट आता है? टेल मी सफिया, सफिया कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा? I'm on a phone. Yes, what you I'm on say? a phone. No, I'm on a phone, so I can't switch on the camera. Okay, fine. Tell me which what volt does the meter provide? Means कितना वोल्ट आता है घर पर टोटल, जिससे कि पूरा I'm घर not sure about that. 220 I वोल्ट, don't Is it 220? 220. 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। तो अब ये 220 वोल्ट अगर हम फ्रिज को भी दे दें, अगर हम फ्रिज को भी दे दें, मोबाइल के चार्जर को भी दे दें, मोबाइल के चार्जर को भी दे दें, तो क्या ये सारे एक ही जैसे डिवाइस हैं? मोबाइल चार्जर एंड फ्रिज, these two devices are of same type? No. नहीं ना, अलग अलग है ना। फ्रिज को बहुत ज्यादा चाहिए, मोबाइल का बहुत कम चाहिए करंट, राइट राइट। करंट मोबाइल फ्रिज को ज्यादा चाहिए ना। फ्रिज will need less amount of current, right? But sorry, more amount of current, and mobile charger will need less amount of current. And if you say AC will need large amount of current, right? And heater will need large amount of current. So if this is the voltage that we are getting from the main supply 220 volt, तो क्या सब में करंट तब सेम जाएगा अगर रेजिस्टेंस हम लगाए ही नहीं है, अगर रेजिस्टेंस हमारा सेम ही है, ठीक है, रेजिस्टेंस हम लगाए नहीं या फिर रेजिस्टेंस हमारा सेम है, तो व्हाट विल बी द करंट फॉर एवरी appliances? V is equal to IR, right? V is equal to IR. So what will be the current? So R is fixed, V is fixed. It means that to every appliances it will be the same current, right? तो which is not possible. ऐसे तो मोबाइल तो बर्स्ट कर जाएगा ना, अगर सेम करंट हम दे देंगे मोबाइल को भी, मोबाइल चार्जर को भी, तो वो तो बर्स्ट कर जाएगा, राइट? तो ऐसा तो होना नहीं है। क्या होना है, हमें करंट को कंट्रोल करना, राइट? वी हैव टू कंट्रोल द करंट सिंस V is constant, right? Since V is constant, V तो जो आ रहा है वो कांस्टेंट है, फाइन। अब हमें क्या करना है, हमें करंट को कंट्रोल करना है। तो हाउ कैन वी कंट्रोल द करंट? बाय increasing or decreasing the resistance. By increasing or decreasing the resistance, every appliances will be having their own resistance, right? Every appliances are having their own resistance, but in addition to that, we also need some more resistances so that the extra current can get controlled, right? Extra current can get controlled. Now V is constant, V is always 220 volt, V is always 220 volt, fine. Now if we increase the current, if current is 20 ohm, let's suppose current is 11 ohm, हम ऐसा लेंगे जो कि इससे डिवाइड हो जाए, फाइन। current is 11 ohm and in one case current is 22 ohm, तो हमें कितनी मिलेगी current will be different, right? Because since we are increasing the resistance, then current will get decreased, right? For suppose for for mobile charger, we need 1.4 ampere, fine. We need 1.4 ampere, fine. अब हमें कितनी रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा? सिंस 220 वोल्ट and we need 1.4 ampere of, then we have to check whether what resistance we need, right? Let us suppose 2.2 ampere. Okay, आसानी से कट जाएगा, तो क्यों टाइम वेस्ट करना। तो point cancel, point will get cancelled and 10 will get introduced. Okay, so 2200 by 22, it will be how much? 100. Means we need 100 ohm of resistance, we need 100 ohm of resistance to make to provide the
current of 2.2 ampere to the mobile charger, right? Means it means that if we'll reduce the resistance, then what will happen? It will reduce the resistance, then current will get higher, right? Resistance कम तो current ज्यादा, तो current ज्यादा हो जाएगा, फिर क्या होगा? हम लोगों को ज्यादा पावर, ज्यादा करंट वाला जो चीज चलाना है, फ्रिज चलाना है, प्रेस चलाना है, उससे हो जाएगा क्या? कम रेजिस्टेंस लगा करके हो जाएगा. ओके, अंडरस्टैंडिंग राइट? इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रेजिस्टर. एंड वन मोर थिंग आई हैव टू टेल यू दैट द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, आई थिंक आई forgot to tell you the unit of resistance. Unit of resistance is what? Ohm, right? Ohm. And to this, the symbol is this. Of ohm, the symbol is omega. This is called omega, right? This is called omega. Fine? Omega. This is called omega. And the symbol of this is omega, but the SI unit of resistance is ohm. Fine? Ohm. Since we can also write it as V by I, voltage, and the unit of current is what? Ampere, right? Voltage per ampere. But the to this we write what? Ohm. To this we write, fine, which is represented as omega, by omega. फाइन. तो रेजिस्टर की बात समझ में आई ना, कि हम लोग रेजिस्टर का क्यों यूज कर रहे हैं? करंट मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है, तो हम लोग क्यों रेजिस्टर का यूज कर रहे हैं? बिकॉज वी नीड डिफरेंट करंट फॉर डिफरेंट अप्लायंसेस. फाइन? इज इट फाइन? Yes, Now, it reduces the current in the circuit. It has given in the definition. Fine. Alloys like nichrome, manganese, and constantan. Examples are like this. Fine. Now, rheostat, variable resistance. Now, what is rheostat? Why? What are you writing, Roshni? I'm writing You the need- resistor definition on my You notebook. need not to. You need not to write. I will share the PDF with you. Okay, Fine? ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yeah, I will be sharing PDF, and also you will find the clean notes of these as handouts Okay, in the ma'am. app. Fine, you can find it, and also I will, and I had shared, but I will share it again. Fine, in the WhatsApp. Are Yes, you ma'am, there yes. in the group? Yes. You have gotten in the group now. Okay, fine. So I will share it. Fine. So you need not to write anything. I will be sharing the PDF Okay. also. Okay. Rheostat. What is rheostat? Rheostat is also a resistor. But what kind of resistor is this? This is the variable resistance in the circuit. Means these are the fixed resistance. इसका resistance जो वो fix होगा. दूसरे टाइप का जो रेजिस्टर होगा उसका रेजिस्टेंस फिक्स होगा. फाइन. अगर इसका 4 ओम है, इसका 40 ओम है, ठीक है, ये क्या है? फिक्स है. अगर हमें 44 ओम चाहिए तो हम क्या करेंगे? इसको सीरीज में जोड़ देंगे. ठीक है. इसको हम लोग कैसे जोड़ देंगे? ऐसे जोड़ देंगे. यहाँ पर जोड़ देंगे. ये अभी हम सिंबल नहीं बना रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे 4 ओम को जोड़ देंगे, यहाँ पर 40 ओम का जोड़ देंगे. ठीक है. तो हमें क्या मिल जाएगा? 44 ओम का. वो यहाँ पे बल्ब जलाना चाहते हैं, बल्ब जला दें. यहाँ पे बैटरी लगा दें. ओके ओके. तो यहाँ पर क्या है? ये फिक्स है ना, ये फिक्स है, राइट? हम इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते. फाइन. हम इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते. बट अब क्या आ रहा है? एक नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि है वेरिएबल रेजिस्टेंस. व्हाट इज दैट वेरिएबल रेजिस्टेंस? दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस. What we can do is we can change the value of the resistance within the circuit. We need not to change anything. We just need to drag this to here or here accordingly, whatever resistance we want in the circuit to be. Okay, this is called variable resistance. This is called variable resistance. Okay, it can be changed within the circuit. Okay, it is a variable resistor which is used to control the flow of electric current by manually increasing or decreasing the resistance. We ourselves can increase or decrease the resistance, right, according to the need. अगर हमें ज्यादा resistance चाहिए तो हम ज्यादा कर देंगे, अगर कम चाहिए तो हम कम कर देंगे. Fine. Okay. Now, good conductor. Good conductor तो हम लोग 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं. Good conductor क्या होता है? What is a good conductor? Which can conduct Safia, electricity. what is good conductor? Which can हाँ, yes, conduct yes, Roshni, electricity. tell me. Like they are like good conductor electricity. Which conduct electricity? Yeah, तो वो good conductor होगा. Like aluminium, copper, silver is the best conductor, right? Silver is the best conductor. हम लोग सिल्वर क्यों नहीं यूज करते हैं? तार जो जाता है बाहर पूरा घर में लगता है, सिल्वर क्यों नहीं यूज करते? वो तो अच्छा कंडक्टर है, अच्छे से कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी. सबसे अच्छा कंडक्टर तो सिल्वर होता है. Why don't we use that? Why don't we use silver instead of copper? Because we use copper wire, no? Everywhere copper wire is used, right?
copper is also a good conductor, but silver is the best conductor. So why don't we Silver is expensive. It's very expensive. Yes, it's very expensive. So सिल्वर लगाओगे तो कहाँ जाएगा? इससे अच्छा तो हम लोग चूड़ी पहन ले सिल्वर की, राइट ना? तो सिल्वर क्या होगा? सिल्वर बहुत महंगा होगा। और क्या होगा? पता चला बाहर बाहर सिल्वर लगा है, थीफ आके काट के लेके चला गया तार। उसका तो क्या रहेगा? उसके तो बल्ले बल्ले रहेगी ना, थीफ की, चोर की तो बल्ले बल्ले रहेगी। वो क्या करेगा? काट के चला जाएगा। इतना तार इतना तार इतना तार काट दिया। बाहर बाहर तार तो रहता ही है। इंडिया में तो और ज्यादा रहता है, अबू धाबी में नहीं होगा ज्यादा, है ना? इंडिया में तो ज्यादा तार तार रहता है, इधर उधर, राइट? तो अगर हम सिल्वर यूज करने लगे तो एक्सपेंसिव है, ऊपर से चोरी का डर। फाइन, तो हम लोग सिल्वर यूज नहीं करते, वो अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है? तो क्या है? कॉपर जब अच्छा है तो हम लोग कॉपर यूज करेंगे। फाइन, व्हाई डोंट यूज कॉपर? ओके, तो गुड कंडक्टर helps in the conduct of electricity, helps in the flow of current, helps in the flow of electrons. It can easily electrons can flow easily in the good conductor of electricity. There are free electrons, right? Free electrons होना जरूरी है good conductor के लिए। तो जितने ज्यादा free electrons होंगे उतना अच्छा conductor होगा। Okay, तो now and resistance ज्यादा होगा या resistance कम? Will the resistance of a good conductor be high or low? And it will be low. That will be low. Okay, for Safia it will be low. For Roshni, what it will be? I'm not sure. Maybe just to give good powers, so But then it's. you already have read about Ohm's law, and you yourself told me that what Ohm's law is and how the current and resistance varies with each other. What is the relation between them? Then why can't you tell me about that good conductor is having offer low resistance or high resistance? I'm low. Is also low. Low. Okay, how can you say that low? Because since they have to like give good power, right? So maybe that's why. And so right now I'm not talking about power. Power की बात अभी बाद में आई, अभी नहीं आई। Ma'am, because अभी तो ओम्स लॉ में तुम बताई ना, ओम्स लॉ में तो बताई रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो करंट कम रहेगा, रेजिस्टेंस कम रहेगा तो करंट ज्यादा रहेगा, राइट? दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इन अ गुड कंडक्टर वी ऑलरेडी आर नोइंग दैट करंट अच्छा होता है, राइट? करंट ज्यादा होता है, करंट ज्यादा अच्छे से ट्रेवल करता है। इट मीन्स दैट रेजिस्टेंस हैज टू बी लो, राइट? देयर आर टू कंडीशन already given. करंट ज्यादा होगा, गुड कंडक्टर है, करंट ज्यादा होगा। इफ दिस कंडीशन इज ऑलरेडी गिवन, then only one case will be followed, that resistance should be low, right? Resistance would be low. Okay, so poor conductor. Okay, now comes a good conductor is done, resistor is done, rheostat is done. Now comes poor conductor. Poor conductor is the opposite of good conductor. It will not be having free electrons to make the current to flow, right? So it will be a bad conductor of electricity. So a material which and it will be having high resistance. Obviously high resistance होगा तभी तो कम करंट फ्लो करते हैं इसमें, मतलब करंट या तो फ्लो ही नहीं करते हैं। अब जस्ट लाइक तुम ले लो एयर। ओके, एयर इज ऑल्सो पुअर कंडक्टर। ऐसा हो सकता है क्या कि तुम अपना मोबाइल चार्जर एयर में लगाओ और वो चार्ज हो जाए, बस स्विच के पास रखो? ऐसा हो सकता है कि स्विच तुम्हारा यहाँ है तो मोबाइल चार्जर अपना यहीं पे रखो और कनेक्ट कर दो अपना मोबाइल चार्जर से? ओके, विल इट गेट चार्ज्ड? नो, नो ना, बिकॉज एयर कैन नॉट ऑफर करंट टू फ्लो, राइट? उसे हमें सर्किट में लगाना ही पड़ेगा, उसे हमें स्विच में स्विच नहीं सॉरी प्लग में लगाना ही पड़ेगा, राइट? हमें उसको प्लग को लगाना ही पड़ेगा। ओके, सो नाउ पुअर कंडक्टर इज आल्सो डन। इंसुलेटर, अब देखो इंसुलेटर एंड पुअर कंडक्टर आर सिमिलर। पुअर कंडक्टर चलो ठीक है, थोड़ा सा क्या करते हैं कि थोड़ा सा करंट को बहा भी लें, करंट को नहीं भी बहाएं, लेकिन इंसुलेटर तो कभी कर ही नहीं सकता। इंसुलेटर तो कभी कर ही नहीं सकता, वो तो सवाल ही नहीं उठता। पुअर कंडक्टर देखो बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, तो इसलिए पुअर कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर भी क्या होते हैं? कुछ हद तक पुअर कंडक्टर जो होते हैं वो कुछ हद तक इंसुलेटर ही होते हैं। इंसुलेटर मतलब कि वो इंसुलेट कर देते हैं, मतलब लाइक नो करंट कैन बी फ्लोन थ्रू देम। करंट फ्लो करने का सवाल ही नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल में लाइक मरकरी दे रहा है, लेड दे रहा है, स्टेनलेस स्टील दे रहा है, एलॉयज ऑफ आयरन एंड क्रोमियम, राइट? तो ये थोड़ा थोड़ा हीट हो सकते हैं,
थोड़ा सा चार्ज अगर हो भी जाए, लेकिन इंसुलेटर का तो कोई सवाल, इंसुलेटर कैन नेवर बी अ कंडक्टर, कैन नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका एग्जांपल लाइक रबर, ड्राई वुड, नॉट दैट वेट वुड। वेट वुड अगर रहा तो करंट फ्लो करेगा, वेट वुड रहा तो करंट फ्लो करेगा। पानी फ्लो करता है करंट, No, no. Yes, पानी करता है ना। ma'am, not अगर pure water, प्योर but वाटर, normally frozen water. yeah, tap water, if we say tap water, then it will conduct electricity because it will be containing impurities, right? Impurities जरूरी है, right? क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि विल हेल्प इन कंडक्टिंग द करंट। ओके, तो हमारे जब हाथ अगर भीगा रहता है, तो अगर हम किसी तार को गलती से छू लेते हैं तो हमको बहुत तेजी से करंट मारता है, राइट? बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर, right? Water is a good conductor, but not distilled water. Which water? Ganda water, ganda water, or you can say tap water. Okay, so these are good conductors. And insulator means no current can be flown through, current flow होने का सवाल ही नहीं। प्लास्टिक है, तो हम लोग अगर कभी गलती से कोई अगर करंट लग भी गया किसी को, तो हम लोग किससे मारते हैं उसको, हम लोग किससे उसको छुटाते हैं? हम लोग नहीं छुटाते हैं, मतलब लोग किससे छुटाते हैं? ट्राई करते हैं कि वो किसी लकड़ी से ऐसे मारते हैं ताकि उसका हाथ जो है छूट जाए और वो बच जाए, राइट? हम लोग लोहे से तो नहीं करते हैं, लोहे से करेंगे और उसी में चिपक जाएगा और साथ में हम भी चिपक जाएंगे ना, ना तार से साथ में हम भी चिपक जाएंगे, बचाने के चक्कर में खुद भी चले जाएंगे। तो किससे किससे मारा जाता है? किसी रबर से या किसी लकड़ी से, लकड़ी लंबी से रहे उससे उसको हटाएं ताकि वो उसको करंट जो है ना लगे, ठीक है? करंट से वो तार से वो छूट जाए, या किसी प्लास्टिक से। ओके, इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो थ्रू इट, इलेक्ट्रिक करंट इसमें से फ्लो नहीं करता। सेमीकंडक्टर जो होता है, कभी होता है कभी होता है कि चार्ज एक उसकी तरह काम करता है, इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह। मतलब कभी फ्लो कर सकता है इसमें से करंट और कभी फ्लो नहीं कर सकता है। लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, कुछ ऐसे वो होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं जिससे कि वो करंट फ्लो करा सकते हैं और करंट फ्लो नहीं करा सकते हैं। लाइक समथिंग, अगर वो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, अभी तुम 12th में जाओगे तो पढ़ोगी दैट जर्मेनियम एंड सिलिकॉन में एक लेवल के ऊपर तक अगर इलेक्ट्रॉन्स चले गए, हीट हो गए, तब फिर वो क्या करते हैं? कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं, राइट? वो भी बहुत ज्यादा कंडक्ट नहीं करते हैं, वेरी स्लाइटली कंडक्ट करते हैं। अब जैसे चिप्स हुआ, चिप्स मतलब खाने वाला चिप्स नहीं, चिप जो मोबाइल्स में होते हैं, राइट? चिप है, तो वो सब में सिलिकॉन और जर्मेनियम के बनते हैं। वो सब जो चिप हैं वो किसके बनते हैं? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के बनते हैं। ओके, बिकॉज दिस आर द सेमी कंडक्टर। फाइन, हीट होते हैं तो फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू कर। ओके, a material which offers intermediate resistance more than conductor and less than insulator. Okay, intermediate resistance होता है जो कि कंडक्टर से तो ज्यादा होता है उसमें रेजिस्टेंस, बट पुअर कंडक्टर से कम होता है, means it can flow electric current. The flow of electrons or electric current in an electric circuit is known as semiconductor. ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉइंट होता है जिसके बाद ये जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या कर सकते हैं? करंट फ्लो करा सकते खुद से। अब देखो, अब बड़ी मजेदार चीज आई है, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। चलो, अब ये मजेदार चीज आई है, तो बहुत ही मजेदार चीज है। वी आर हैविंग वेरी लेस टाइम, कंप्लीट होता है एक बार में तो मजा आता है। चलो ठीक है, चलो स्टार्ट तो कर ही दे। चलो, मान लो कि ये दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है, ये बारात जा रही है, दिख रहा है? बारात दिख रहा है। बारात जानती हो ना सब लोग जानते हैं ना बारात क्या होता है। चलो, मान लेते हैं कि सफिया के चाचू की बारात निकल रही है, ठीक है? सफिया के चाचू की बारात निकल रही है। ओके, अब सफिया के चाचू की बारात जो है, मान लेते हैं कि ये इतना दूर है, ठीक है? एक सफिया के चाचू की बारात निकल रही है, एक रोशनी के चाचू की बारात निकल रही है, ठीक है? दोनों के चाचू की बारात निकल रही है। सफिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बारात निकालने? नो प्रॉब्लम ना? ओके, सफिया चाचू एंड रोशनी चाचू। That's a good example. गुड एग्जाम्पल ना? क्यों? चाचू उनकी बारात निकलने वाली है क्या सफिया? No, ma'am, he's already अच्छा, married. ओके, ठीक है, चलो एक बार और बारात निकाल दो। ठीक है, एक बार और बारात निकाल देते हैं। तो ठीक है, सफिया चाचू एंड रोशनी चाचू। अब सफिया चाचू की जो बारात जो है वो थोड़ा कम दूर पर है, मतलब जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे जाना है लड़की के घर, तो वो थोड़ा कम दूर पर है, मतलब यहीं पर आ गया लड़की का घर, ठीक है? लड़की का घर, यहाँ पे दुल्हन बन के बैठी है। ओके, यहाँ पे दुल्हन, तो ये हो गया सफिया के चाचू की बारात जा रही। अब यहाँ पे रोशनी की जो चाचू की जो बारात जा रही, यहाँ पे जो दुल्हन बैठी है वो थोड़ा सा दूर पर है, ठीक है? ये क्या है?
थोड़ा सा लंबा रास्ता है, डबल रास्ता, ठीक है। लोग लेकिन उतने ही हैं, ये जान लो। ये लोग जो देख रही हो, ये लोग उतने ही हैं। जो सफिया के जो चाचू की बारात निकल रही है और जो रोशनी के जो चाचू के बारात निकल रही है, लोग उतने ही हैं। ये लोग वही हैं, ये लोग वही हैं, ठीक है, ठीक है ना। दोनों फ्रेंड्स है ना, सफिया एंड रोशनी, तो इन लोग के जो लोग जा रहे हैं वो सेम है, ये भी है, ये भी है। अब बताओ, लोग सेम है, नंबर मान लो 100 लोग से बारात जा रही है, ज्यादा हो गया 100 लोग, चलो मान ही लेते हैं 100 लोग से बारात जा रही है, और यहाँ पे भी 100 लोग से बारात जा रही है, ठीक है। तो यहाँ तो कम रास्ता है, यहाँ पे गाड़ी मोटर सब जा रही है, तो लोग डांस करते करते जाते हैं ना, डिचक 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 डां डिचक डां, डांस करते हुए जाते हैं। तो अब डांस करते हुए जा रहे हैं, तो हाँ, तो लोग जा रहे हैं, गाड़ी मोटर जा रही है। अब बताओ, रास्ता का जो सब चीज सेम है, मतलब रास्ता का जो ये है एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रास्ता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रास्ता ये सेम है, मींस एरिया इज सेम, एरिया इज सेम, ठीक है। ये भी एरिया वही है, ये भी एरिया वही है, ओके फाइन। तो अब एरिया सेम है और रोड एक जैसी है, ठीक है। रोड में कोई एक ही कंक्रीट की बनी है, एक ही द सेम टाइप ऑफ कंक्रीट से बनी है, फाइन, ठीक है ना। तो अब क्या है, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट दोनों का सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इतनी चौड़ी रोड है तो इतनी ही चौड़ी रोड है। अब बताओ, आराम से कौन सी बारात, अब लोग तो ज्यादा है, हल्ला करते करते निकलेंगे, बीच में गाड़ी मोटर सब चल रही है, लोग आराम से किस वाले में जल्दी से पहुंच जाएंगे, या फिर बताओ किस में ज्यादा परेशानी होगी, किस में ज्यादा परेशानी होगी। लोग ज्यादा है, रास्ते में ये सब कार्स और ये लोग भी जा रहे हैं, मान लो लोग भी धीरे धीरे जा रहे हैं। अब किसमें जो है परेशानी ज्यादा होगी जाने में, किसमें देर देर में जा पाएंगे, रोशनी की बारात, सॉरी रोशनी के चाचू की बारात में, या सफिया के चाचू की बारात, सॉरी रोशनी के चाचू की बारात में लोग धीरे जा पाएंगे, या सफिया के चाचू की बारात में लोग धीरे जा पाएंगे, बताओ देर में किसमें जा पाएंगे, परेशानी किसमें ज्यादा होगी, बताओ बताओ, टेल मी। ए केस और बी केस, I'm in B case because बी केस the में परेशानी थोड़ी ज्यादा होगी, राइट, परेशानी थोड़ी ज्यादा होगी ना, बिकॉज लंबा रास्ता है, क्वालिटी तो वही है, इसमें तो जल्दी से चला गया, चलो ठीक है, जल्दी आ गया, आराम से मिल गया, आराम मिल जल्दी आ गया। लेकिन इसमें क्या हो गया, परेशानी ज्यादा हुई, राइट, लोग ज्यादा है ना, मान लेते हैं चलो 200 की बारात है, लोग और ज्यादा, ठीक है। परेशानी किसमें ज्यादा होगी, रोशनी के चाचू की बारात में परेशानी, राइट। लंबा रास्ता है, चौड़ाई जो है वो एक ही है दोनों की, ठीक है। तो सफिया के चाचू की आराम से चली जाएगी, लेकिन रोशनी के चाचू की थोड़ी सी परेशानी होगी। अब बताओ, लेंथ ज्यादा हुआ और लोग क्या करेंगे, इधर उधर लड़ेंगे भी ज्यादा, क्योंकि ज्यादा कार्स हैं, ज्यादा कार्स जा रही हैं, ज्यादा गाड़ी मोटर जा रही है, ज्यादा लोग हैं, तो लोग एक दूसरे से क्या होंगे, ज्यादा लड़ेंगे, राइट, ज्यादा इधर उधर कोलाइड करेंगे। तो लेंथ ज्यादा हुआ तो कोलिजन ज्यादा हुआ ज्यादा, राइट। लेंथ ज्यादा हुआ तो कोलिजन ज्यादा हुआ, कोलिजन ज्यादा हुआ तो परेशानी ज्यादा हुई, इट मींस रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ नहीं हुआ, रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ ना, लेंथ ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ। इट मींस द फर्स्ट केस दैट वी हैव कंक्लूडेड is that length is in directly resistance is directly proportional to length. More the length will be there, larger will be the length, more will be the resistance, right. उतने ही चीज ज्यादा दूर तक जाएगी तो ज्यादा कोलिजन होगा, ज्यादा कोलिजन होगा। यहाँ पर भी हम बनाए हैं तुम लोग के लिए, ये भी बनाए, देखो ये देखो। अब यही चीज होता है किसमें, वायर में, ज्यादा दूर तक जा रही है तो कोलिजन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि चीजें तो है वो ज्यादा मिल रही है, राइट। गाड़ी मोटर ज्यादा मिल रही है तो कोलिजन ज्यादा हो रहा है, ट्रैफिक ज्यादा मिल रही है तो कोलिजन ज्यादा हो रहा है, कोलिजन ज्यादा हो रहा है तो परेशानी ज्यादा हो रही है, परेशानी ज्यादा हो रही है, इट मींस रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, इट मींस करंट कम हो रहा है, हुआ, राइट। तो रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मोर द लेंथ विल बी देयर, मोर विल बी द रेजिस्टेंस। ये क्लियर हो गया, ये पार्ट क्लियर है, नहीं क्लियर है, क्लियर है, ओके। अब चलो, अब हम लोग दूसरी बात अब हम लोग दूसरी बात करेंगे, बात वही रहेगी, बारात तो अभी भी जाएगी, बारात तो अभी भी जाएगी, तो पहुंचना है डेस्टिनेशन। अब देखो, अब यहाँ पर जा रही है सफिया की बारात, अरे सॉरी, सफिया के चाचू की बारात, सॉरी वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, सफिया के चाचू की बारात यहाँ पर जा रही है। पहले सफिया के चाचू की जाएगी, क्योंकि सफिया के चाचू जो है वो थोड़े बड़े हैं और रोशनी के चाचू छोटे, रोशनी के चाचू की बारात, ठीक है, ओके। अब देखो, अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, लोग फिर भी 200 हैं, 200 वही 200 हैं, और वही लोग हैं, वैसे ही नाचते हुए जा रहे हैं, ठीक है, वैसे ही नाचते हुए जा रहे हैं। अब क्या बात हुआ कि हम, ये इसकी पतली है लेंथ,
सॉरी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है और इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। इट मींस ये थोड़ी चौड़ी रोड है जिसमें रोशनी के चाचू की बारात जा रही है, वो थोड़ी चौड़ी रोड है, वो अच्छा जो है वो ढूंढी है, रास्ता जो है वो अच्छा ढूंढी है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, एरिया जो है वो छोटा पड़ गया, एरिया जो है वो छोटा है। ये देखो साफ साफ दिख रहा है ना, जस्ट हाफ दिख रहा है, राइट, हाफ है ना। तो इसमें एरिया क्या हो गया, चौड़ा हो गया, सॉरी हाँ, इसमें चौड़ा हो गया, इसमें पतला हो गया, ठीक है, एरिया जो है पतला हो गया। अब बताओ किसमें आसानी से बारात, किसमें परेशानी से बारात जाएगी? सफिया के चाचू की बारात परेशानी से जाएगी, ए की बी? सफिया के चाचू की बारात परेशानी से जाएगी या रोशनी के चाचू? परेशानी किसमें होगा? वेट, सफिया के चाचू की बारात परेशानी से जाएगी या वेट, हाँ, तो टेल मी, सफिया किसमें परेशानी ज्यादा होगी, किसमें परेशानी ज्यादा होगी? टेल मी, पतले रास्ते में होगी या मोटे रास्ते में होगी? परेशानी किसमें ज्यादा होगी? फर्स्ट वन में ज्यादा परेशानी होगी, राइट। इट मींस रेजिस्टेंस जो है, इट मींस क्या हो रहा है, अगर एरिया कम हो रहा है, अगर एरिया, if I'm decreasing the area, if I'm decreasing the area, this, if I'm decreasing the area, then collision will be high, right? Then collision will be high and resistance will be high, because collision will be high, so resistance will be high. It means इसमें परेशानी हो रही है ना, इस वाले केस में परेशानी हो रही है ना, किसमें परेशानी हो रही है? सफिया के चाचू की बारात में परेशानी हो रही है ना, राइट ना। तो इसका मतलब if I am decreasing the area, if I am decreasing the area, right, then collision will be zyada, and if collision will be zyada, then resistance will be zyada. Is it so? Yes or no? It means we have got second thing, that resistance is inversely proportional to A, the area of cross section. More less will be the area, more will be the resistance, more will be the collision, right? यहाँ पे जो जा रही थी बारात, क्या हो रहा था, यहाँ पे ज्यादा कोलिजन होगा ना, यहाँ पे तो लोगों को ज्यादा जगह मिल रहा है, चलो ठीक है, फैल के जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, नाचते हुए आराम से जा रहे हैं ना। लेकिन इसमें जो हो रहा है, नाच तो रहे हैं लेकिन इतने इतने धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहा है, तो करंट जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, ज्यादा कोलिजन हो गया। इट मींस इफ वी हैव डिक्रीज द एरिया, देन रेजिस्टेंस हैज गॉट इंक्रीज्ड। फाइन, क्लियर है, क्लियर है। तो इसका मतलब सेकंड हम लोग को ये मिल गया, फर्स्ट एंड सेकंड, ओके। अब देखो अब कैसा मिल रहा है, अब रोशनी के चाचू परेशानी हो जाएगी, अब रोशनी के चाचू को परेशानी हो जाएगी, सफिया के चाचू थोड़ा सा आराम लेंगे, ओके। तो अब क्या करना है हम लोगों को, कि सफिया के चाचू का रोड बहुत अच्छा है, हर चीज तो सेम है, एरिया इज सेम, फाइन, एरिया इज सेम एंड length is also same, length is also same, okay, length is same, area is same. Now see the quality of road, it is made up of very fine concrete, बहुत अच्छी कंक्रीट का बना हुआ है। सफिया के चाचू की बारात जा रही है, ठीक है, अब रोशनी दुखी होगी, अब क्या होगा, क्योंकि रोशनी के चाचू की जो बारात है वो कैसे रास्ते से जा रही है, देखो मिट्टी वाला रास्ता, मिट्टी वाले रास्ते से जा रही है सफिया के चाचू। अब सफिया के चाचू की बारात जो मिट्टी वाले रास्ते से जाएगी, अब बताओ किसमें परेशानी होगी, बताओ किसमें परेशानी? सेकंड केस में परेशानी होगी ना। इट मींस ये जो इसकी क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है, अगर क्वालिटी को अगर हम इससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्वालिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं रो, not weep, not cry, it's रो, RHO, फाइन। तो रो से करेंगे, रो से, तो अगर रो ज्यादा है, इट मींस अगर खराब रोड ज्यादा है, ठीक है, अगर रो ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, क्योंकि परेशानी ज्यादा हो रही है, राइट। बीच में ईटा पत्थर, भले गाड़ी मोटर ज्यादा नहीं चलेगी लेकिन ईटा पत्थर तो रहेंगे ना, है ना, कीचड़ पड़ेगा, छक्का छप्पा कैसे जाएगी, ठीक है, बारात ऐसे जा रही है, पता चला सबका कपड़ा ही खराब हो गया, नाच रहे हैं कपड़ा ही खराब हो गया, ठीक है। इसका मतलब सड़क खराब ज्यादा रहेगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगी। रेजिस्टिविटी इसको कहते हैं क्या, रेजिस्टिविटी, ये जो होती है वो क्वालिटी होती है मटेरियल की, ये जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड। यहाँ पे तो लेंथ हम लोग चेंज कर दे रहे थे, एरिया हम लोग चेंज कर दे रहे थे, बट इन दिस केस लेंथ चेंज कर दो, एरिया चेंज कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन नॉट चेंज द क्वालिटी ऑफ दिस रोड, राइट, यू कैन नॉट चेंज द क्वालिटी ऑफ दिस रोड वंस यू change the road,
अगर रोड ही चेंज कर दिए, अपना रास्ता ही बदल ली, जैसे कि सफिया के चाचू रास्ता बदल लिए, अपना अच्छा रास्ता कर लिए, तो वो केस अलग है, राइट। मींस इस केस में, इस केस की क्वालिटी अलग है, इस केस की क्वालिटी अलग है, बोथ आर हैविंग डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ रोड, राइट। इसीलिए क्वालिटी अच्छी रहेगी, क्वालिटी अच्छी रहेगी तो रेजिस्टेंस कम लगेगा, बट अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा रहेगी, इट मींस क्वालिटी अगर खराब रहेगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा, ठीक है। हम उल्टा बोल दिए क्या पहले वाले केस में, कुछ लग रहा उल्टा बोल, चलो ठीक है, तुम लोग समझ गए। रेजिस्टिविटी ज्यादा तो रो आर ज्यादा, मींस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, राइट। रेजिस्टिविटी इज द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनी मटेरियल। कॉपर की अलग रेजिस्टिविटी है, सिल्वर की अलग रेजिस्टिविटी है, एंड एल्यूमिनियम की अलग रेजिस्टिविटी है, फाइन। और जो इंसुलेटर होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी की तो बात ही नहीं है, छोड़ दो उनकी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ही रेजिस्टिविटी है, बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी, इसी वजह से वो कंडक्ट करते ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी, राइट, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, रेजिस्टिविटी ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। कॉपर की बताओ रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी या कम, बताओ जल्दी बताओ। It will be less. लेस, राइट, वो कम होगी, वाई, बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर की उससे भी कम होगी, बिकॉज इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो वी हैव गॉट three things. What are they? They are R is equal to R proportional to L, R proportional to L, R is inversely proportional to A, and R is directly proportional to resistivity, and resistivity is the constant part of this whole scenario, okay. रेजिस्टिविटी इज द कांस्टेंट पार्ट। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरा फॉर्मूला क्या बन जाता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई, दिस इज द फॉर्मूला। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है जब इसका बोलेगा लेंथ हम हाफ कर दिए, अब बताओ क्या होगा रेजिस्टेंस, एरिया हम हाफ कर दिए, अब बताओ क्या होगा रेजिस्टेंस, एरिया हम डबल कर दिए, अब बताओ क्या होगा, अब कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस, राइट। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत मजेदार भी होता है, ओके, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको और करके पढ़ेंगे। अभी हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंस भी पढ़ेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर घटाते हैं तो रेजिस्टेंस ओके, और रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता ही है, ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस भी है, और थोड़ा सा भी बता ही दिए, और क्या है, और इसके बारे में हम लोग और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। आज मजा आया रोशनी, मजा आया, चाचू की बारात निकालने मजा आया। आज तो हम लोग बारात घूमे हैं, आज तो हम लोग पढ़ाई कहाँ की, आज तो हम लोग बारात घूमे हैं, है ना। खाना पीना नहीं मिला, ये दिक्कत हो गया ना, खाना पीना नहीं मिल पाया। चलो ठीक है, कभी और खाएंगे खाना वाना, ठीक है। मजा आया, एंजॉय, ओके, बाय देन, बाय फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। Yes, ma'am. Thank you, ma'am.